Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Sorry. So in last class we discussed about the level of parallelism. Now today's topic is program scheduling and packing.
Okay. So our topic is program scheduling and program partitioning and scheduling. The first topic is grain size and latency and level of parallelism. That is we are already completed. And second topic is program scheduling, packing and scheduling, grain packing and scheduling. So we'll know aware about the grain. Grain is a partition of a program or a segment of a program. So in this topic, you discuss about the grain packing and scheduling, how the grain will be partitioned. Then after the partition, how will be grain will be packed and how it will be scheduled for the execution. Sorry. So this screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. So basically in grain packing and scheduling, two fundamental questions are asked in a parallel programming. First one is how can we partition a program into parallel branches, program modules, micro task or grain to yield the shortest possible execution time. Okay, and the second one is what is the optimal size of concurrent grain in a computation. Okay, so हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास sequential program होता है, हमने उसको क्या किया था, partition किया था segments में. That segment is called grain and each segment or each grain contain a number of instruction. ठीक है, that is called grain size. ठीक है, तो अब हम जो प्रोग्राम को हम पार्टीशन करते हैं उनमें हम पैरेलल ब्रांचेस लाते हैं, उनको एग्जीक्यूशन कराते हैं. ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या करते हैं कि जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें क्या शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा, उसका क्या साइज होगा, जो हमारा ग्रेन है अगर हम उसे शेड्यूल करेंगे या हम उसे पैक करेंगे तो उसका क्या ऑप्टिमल टाइम होगा, क्या उसका साइज होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम जब पैकिंग एंड शेड्यूलिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेन पैकिंग एंड शेड्यूलिंग, so we discuss before packing or scheduling, after packing and scheduling. Okay, so we discuss both the factors before scheduling and packing and after packing and scheduling. Okay, so we are taking one example to understand the grain packing before and after. Okay, so you all are aware the program graph, dependence graph, we already discussed in data dependence. Okay, so in this grain packing or scheduling, we also taking an example, and this example will be through the program graph or dependence graph. This program graph is just similar to a dependence graph. Okay, so now this is an example. Okay, so basic concept of the program partition, we already discuss how the program will be partitioned and how it will be available for a parallel execution. Okay. So this program graph is just similar to your dependence graph. We already discussed in dependence graph. So in this program graph, each node in the program graph correspond to a computational unit in a program. Okay. So when we discussed a program and we are making a program graph, so each node, okay, in graph, each node is represented what? Computational unit in the program, and grain size is measured by the number of basic machine cycles, both the processor and machine memory cycles. Okay. So now this is a graph which we are making. So in this graph, what is node, what is ages, how we can represent node and how it represented ages. So node, okay, so we denote each node via a pair n comma s. Okay, so n is what? N is the node name and s is what? S is the grain size of the node, or we can say that एग्जीक्यूशन साइकिल और नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक है, तो एन कॉमा एस क्या होगा आपका नोड, एन इस क्या होगा आपका नोड नेम, एंड एस क्या होगा आपका ग्रेन साइज और साइकिल. ठीक है, and thus grain size reflect the number of competitions involved in a program segment, like your program like your clock cycles.
how many cycles are required to execute an instruction. Okay, so we discussed this graph on two parameter, grain, fine grain and coarse grain, right? So fine grain nodes have a smaller grain size and the coarse grain node have a larger grain size. We all know that fine grain is for uh, smaller number of instruction, and the coarse grain is we are using for coarse grain for larger number of instruction, like thousands, tens of thousands of instruction. Okay, so these n comma s represent the node. Okay, and age, the age level v comma d. Between the two AND nodes, specify the output variable v from source node or the input variable to the destination node, and the communication latency d between them, delay. ठीक है, so v comma d क्या है आपका? D is your computation delay and v is what? Your source to destination node, जो भी आपका source है destination node के लिए जो input variable है, that is your v. ठीक है, so with the help of ages we connect all the nodes. Okay, so there are 17 nodes in fine grain graph we discussed in example and 5 in coarse grain node. Okay, so we are taking one example. Okay, here we are taking a 17 variable a b c d up to p. This is a variable a b c d e f g h I j k l m n o p q. Okay, so we are taking this variable and this is a program. Okay, now this is a program and we declare the variable in the beginning and this is a program. Okay, so this program will be take a 17 steps, 1 to 17. Okay, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, d is equal to 4, e is equal to 5, f is equal to 6, and g is equal to a cross b, h is equal to c cross d, I is equal to d cross e, j is equal to e cross f, k is equal to d cross f, l is equal to j cross k, m is equal to 4 cross l, n is equal to 3 cross m, and o is equal to n cross I, p is equal to o cross h, and q is equal to p cross q. Okay, so this is a 17-step program. Okay, the first 6 statements 1 to 6, it is an initialization or a declaration where we initialize the variable a to f have some values 1 to 6, right? So these first to 6 variable take a one step to execute instruction because we are taking a single variable or single instruction, right? From 7 to 17. Okay, we are using a multiplication, we are using a multiplicity operation, multiplication operation. So we are multiplying two instruction or a two variable. So it will take a 2 cycle to execute the instruction. Okay, because we are using a 2 variable, we are multiplying this variable and then result will be stored in the next variable z. So it will take a 2 cycle. So all the variable from 7 to 17, it will take a 2 cycle. Okay, so node 1 to 6 are memory reference operations where we can fetch the data from the memory from A to F, right? And G to Q from 7 to 17. Okay, so all 7 remaining nodes means 7 to 17 are CPU operation and each requiring 2 cycles to complete, and this memory reference required 1 cycle to complete, right? ठीक है, तो 1 to 6 क्या है हमारे मेमोरी रेफरेंस है एंड 7 to 17 हमारे क्या है सीपीयू ऑपरेशंस हैं. 1 to 6 will take a 1 cycle to complete, require 1 cycle to complete the execution, and 7 to 17 2 cycles. Okay, now we are start the making program graph. Okay, so this is the example and this is the graph. From this example we are taking this we are making this graph, fine grain graph before packing and coarse grain graph, coarse grain program graph after packing. So
N S is what? N is your node name and S is your grain size. X I means X is your input and I is your delay and U is your output and K is your delay. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा है. हम इसको वन बाय वन, नोड बाय नोड हम इसको बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, राइट. सो हम सबसे पहले ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देखना है. जो हमारा प्रोग्राम था, जो 17 स्टेप्स का जो प्रोग्राम है, उसे हमें याद रखना है, राइट. तो फर्स्ट टू सिक्स जो स्टेप थे, A टू F, 1 2 3 4 5 6, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स बनाएंगे, राइट. नोट्स कैसे बनाएंगे, हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, हमारे पास 6 नोड बनाने हैं हमें. और नोड हम कैसे बनाएंगे, एन कॉमा एस से. एन क्या है आपका नोड नेम एंड एस क्या है उसका ग्रेन साइज. ठीक है, ग्रेन साइज मीन्स क्लॉक साइकिल. अब 1 to 6 इंस्ट्रक्शन के लिए या वेरिएबल के लिए हमें 1 साइकिल लग रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 1, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, 6 कॉमा 1. ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना सभी को? Yes. ओके, सो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, जो हमारा प्रोग्राम था A इज इक्वल टू 1 B 2 C 3 D 4 E 5 एंड F 6, तो हमने उसे क्या किया, A B C D E को हमने क्या किया, नोड बनाए. सबसे पहले इनसे नोड कैसे बनाएंगे हम, N कॉमा S से. N हमारा नोड नेम मीन्स 1 एंड S मीन्स ग्रेन साइज मीन्स क्लॉक साइज. कितनी साइकिल लग रही है हमें 1 to 6 के लिए, 1 साइकिल लग रही है, तो इसलिए हम लोगों ने 1 नोड 1 साइकिल, 2 नोड 1 साइकिल, 3 नोड 1 साइकिल इस टाइप से ये बनाया, राइट. अब नेक्स्ट हमारा क्या था, 7 से स्टार्ट हो रहा था, जहां से हमारी 2 साइकिल्स लग रही थी. सो 7 स्टेटमेंट है, G इज इक्वल टू A क्रॉस B. ठीक है, सो हम याद करेंगे, हमने सबसे पहले ये बनाया. अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम सारे नोट्स बना देते हैं, राइट. ये 7 2 8 2 9 2 10 2 एंड 11 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्या है, 2 साइकिल्स लग रही हैं, तो हमने यहाँ पर ये नोट्स बनाए, राइट. अब हमारे पास क्या है, ये हमने नोट्स बनाए थे सबसे पहले. अब इन नोट को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है एजेस से. तो एज कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, V कॉमा D. ठीक है, V कॉमा D था. इट मींस D क्या था आपका, डिले, एंड V क्या था आपका, सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए जो हमारा इनपुट वेरिएबल है वो, राइट. अब आप देखिए अब हमारी नोड कनेक्ट एजेस का कनेक्ट करूंगी, G इज इक्वल टू A क्रॉस B. ठीक है, तो ये आपका A था, मैम V क्या है यहाँ पे? सोर्स टू डेस्टिनेशन इनपुट वेरिएबल. ठीक है. ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G H I J एंड K, राइट. अब हमें क्या करना है, 7 स्टेटमेंट है आपका, G इज इक्वल टू A क्रॉस B मीन्स ये G है, इसके अंदर कौन से इनपुट्स आएंगे आपके, ये आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन इनपुट वेरिएबल की तरह आएगा A, एंड यहाँ पर ये क्या आएगा B. ठीक है, अब A और B ये तो आ रहे हैं, अब हमें इसके साथ में क्या बताना है आपको, डिले बताना है. ठीक है, अब हम डिले कैसे बताएंगे, सो देखिए ये आपके 6 जो हमने इनिशियलाइज किया था. ठीक है, हर एक वेरिएबल या इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट होने के लिए क्या कर रहा था, एक एक साइकिल ले रहा था. तो यहाँ पर 6 वेरिएबल थे, तो उन्होंने कितने साइकिल्स लिए, आपके 6 साइकिल्स ले लिए हैं. ठीक है,
अब सेवेंथ जब स्टेटमेंट पर आ रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो ये जो सेवेंथ स्टेटमेंट है मींस जी किस पर डिपेंडेंट है, आपका ए एंड बी पर। तो जब तक आपके ये इंस्ट्रक्शंस, ये जो वेरिएबल्स है ये एग्जीक्यूट होंगे, तभी हमारा नेक्स्ट 7 इंस्ट्रक्शन आएगा, और वो किस पर डिपेंडेंट होगा, ए एंड बी पर। तो यहाँ पर डिले कितना होगा, हमारा 6 का डिले होगा, बिकॉज ये सारे इंस्ट्रक्शन कितना साइकिल ले रहे हैं, 6 साइकिल्स ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हम यहाँ पर जो कनेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, ए कॉमा 6 एंड बी कॉमा 6, ये सारे 6 किस साइकिल लेंगे, ठीक है 6, ठीक है। तो ये 6 कैसे आए, समझ में आया कि यहाँ पर टोटल 6 साइकिल्स लग रही थी उन, इसलिए हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे नेक्स्ट 7 से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें कितना डिले लग रहा है, 6 का डिले लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, a कॉमा 6 एंड b कॉमा 6, ठीक है। तो g के अंदर क्या है आपका, g इज इक्वल टू a क्रॉस b, मीन्स a कॉमा 6 क्रॉस b कॉमा 6, राइट। 8th स्टेटमेंट है आपका h इज इक्वल टू c क्रॉस d, तो ये c आएगा यहाँ पे c कॉमा 6 एंड ये आपका क्या आएगा, d आएगा, राइट। फिर 9th स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू d क्रॉस e, तो ये आपका d आ गया एंड ये आपका e आ गया, राइट। फिर आपका है j इज इक्वल टू e क्रॉस f, तो यहाँ से ये आपका e आ गया एंड यहाँ से आपका f आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका k इज इक्वल टू d क्रॉस f, तो ये f यहाँ से आ गया आपका एंड क्या है आपका d, तो d ये यहाँ से आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ये समझ में आया सभी को। सो यहाँ पर हमारा जी एच आई जे के तक कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम क्या कर, नेक्स्ट हमारा क्या है, m इज इक्वल टू 4 इंटू एल, ठीक है। अब आपने ये कंप्लीट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, 12th स्टेटमेंट है हमारा l इज इक्वल टू जे क्रॉस के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा l आएगा, ठीक है। और l सॉरी ये हमारा 12th नंबर का स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारा साइकिल्स, अभी मैं बताती हूँ कितनी लगेंगी, 2 साइकिल्स ही लगेंगी, बिकॉज हमारे 2 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 करा एंड इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन किसका आ रहा है, j क्रॉस k का, राइट। अब यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं वो कितने लगेंगी, तो यहाँ से लेकर ये, इनको हम एक एनवेलप में डाल सकते हैं, राइट, 6 6 6 6 6 एंड ये जो है आपका ये भी इसमें आएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, तो मैं आपको जो बुक में जो रियल डायग्राम है उससे मैं एक बार आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड इनको हम एक ग्रुप में एनवेलप में डाल सकते हैं एंड इनको हम एक एनवेलप में डाल सकते हैं, राइट। सो अब 12 एंड 2, तो टोटल नंबर ऑफ जो डिले होगा, अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 2 साइकिल्स का 1, इनको ये बिकॉज ये आपका एक एनवेलप हो गया, तो यहाँ पर आपका डिले कितना होगा, 4 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 का डिले होगा, तो हम क्या करेंगे, k कॉमा 4 j कॉमा 4 i कॉमा 4 h कॉमा 4 एंड j कॉमा 4, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है m इज इक्वल टू j क्रॉस l, ठीक है। अब l क्या था, ये था हमारा जिसमें हमारा 12th इंस्ट्रक्शन आया था। अब नेक्स्ट है हमारा m इज इक्वल टू 4 क्रॉस l, ठीक है। तो l ये जो है ये, एंड हमारा एक कांस्टेंट हमने क्या लिया है, 4, तो इसमें एक ये 4 आएगा आपका एंड किसके अंदर आएगा आपका 13 वाला जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें साइकिल कितनी होगी 2, बट L जो है L के साथ हमारा क्या आएगा, यहाँ पर डिले कितना होगा एंड 4 का डिले क्या होगा, तो 4 का तो कांस्टेंट है तो कोई डिले नहीं होगा, तो ये 0 होगा, 4,0, बट L का डिले क्या होगा, तो L देखिए एक 2 साइकिल्स इसकी लगेंगी L की ये वाली एंड 1 साइकिल इसकी, तो इस पूरे को एग्जीक्यूट होने के लिए जो डिले लगेगा वो कितना लगेगा, L,3 का 2 + 1, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका है n इज इक्वल टू 3 क्रॉस m। तो ये आपका l था, ये आपका m था, राइट। सो n इज इक्वल टू, अब आपका यहाँ से n आएगा, ये आपका 14th वाला इंस्ट्रक्शन होगा, 2 साइकिल होगी एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। सो ये आपका 3,0 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो n की डिले होगा वो क्या होगा, n,3, बिकॉज 2 इसका होगा और एक कांस्टेंट का होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इन तीनों को हम एक ब्लॉक में डाल सकते हैं या एक एनवेलप में डाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब हम n के लिए नेक्स्ट जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए बनाएंगे। तो लास्ट 3 इंस्ट्रक्शन है O, P एंड Q। सो O के अंदर क्या आएगा आपका n क्रॉस i, तो ये आपका n आया है। सो यहाँ से आपका ये O होगा 15th क्लॉक साइकिल 2 एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, O इज इक्वल टू n क्रॉस i। तो O तो यहाँ से आया एंड I कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, मैं डायग्राम आपको जो रियल डायग्राम है उससे डिस्कस करते हैं, आई थिंक तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ये समझ में आया था कि हमारे नोट थे एंड उसमें जो हमारी साइकिल लग रही थी वो थी, ठीक है। देन हमने क्या किया, 7 8 9 10 11 नोट्स बनाए थे जो हमारे 7 स्टेप से स्टार्ट हो रहे थे, 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 13 14 15 16 17, ये सारे क्या कर रहे हैं, 2 साइकिल्स ले रहे थे, तो हमने सबके साथ में कॉमा 2 किया है, ठीक है। अब हम एजेस कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारी 6 साइकिल्स हैं, ये 6 साइकिल्स लग रही हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर जो डिले बताया वो क्या आया, 6 आया, और सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा क्या वेरिएबल इनपुट आ रहा है, ए, तो वो बताया। तो जी के अंदर क्या आ रहा था हमारा, ए क्रॉस बी। तो ए 6 कॉमा ए कॉमा 6 कॉमा बी कॉमा 6 किससे कनेक्टेड होगा आपका, 7 कॉमा बी 2 से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो था H इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, तो ये हमारा H है, सी डी इससे कनेक्ट होगा, ये H होगा हमारा, राइट। नेक्स्ट हमारा I इज इक्वल टू D क्रॉस E, तो ये आपका D था और ये आपका E था, तो ये आपका D क्रॉस E I में कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका था J, J इज इक्वल टू E क्रॉस F, तो E एंड ये F ये 10 से कनेक्ट हुआ था, राइट। एंड 11 था आपका K इज इक्वल टू D क्रॉस F, तो ये D, यहाँ से ये D आया और ये आपका F आया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इनको इन दो 9 10 को एक एनवेलप में रखा, 7 8 को एक एनवेलप में रखा, एंड यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ एंड जो आपका था 11th स्टेटमेंट था के, इनको हमने एक एनवेलप में रखा, राइट। तो हमारे पास 3 एनवेलप हो गए, इनकी हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा था डी, डी हमने इनको एनवेलप में रख के इसकी नेमिंग की है डी। हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो वेरिएबल था हमारा 12th था, तो 12 2 से कौन से कनेक्ट, 12 के लिए क्या था हमारा, L इज इक्वल टू J क्रॉस L, तो ये J और ये K ये किससे कनेक्ट होगा, 12 2 से। तो यहाँ पर जो डिले हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4, बिकॉज ये 7 8 9 10, ठीक है। इनको कंप्लीट करने में हमारी जो सॉरी J क्रॉस के, ये आपकी 2 ये और 2 ये 4 साइकिल्स लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिले यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है, J क्रॉस के का। सिमिलरली इसका आउटपुट क्या होगा हमारा, क्या था, L इज इक्वल टू J क्रॉस था। नेक्स्ट है आपका M इज इक्वल टू 4 क्रॉस L, तो M 13 इंस्ट्रक्शन था हमारा, 13,2 एंड M क्या है आपका, ये आपका M यहाँ से आया है, 12 वाला जो था M उसका आउटपुट L का, और 4 जो कांस्टेंट है हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ से मैं देख कर बता रही हूँ, ठीक है। L इज इक्वल टू J क्रॉस L था, 12 वाला हमने जो कनेक्ट किया, M इज इक्वल टू 4 क्रॉस L, 4 हमारा कांस्टेंट है, L जो है 12 का जो आउटपुट है वो 13 में एज अ इनपुट हमारा कनेक्ट होगा,
ठीक है। तो ये 12 का जो आउटपुट है वो 13 में एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है एंड 4 हमने कांस्टेंट लिया था। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए हमारी डिले क्या होगा, 0 होगा एंड यहाँ पर एल के लिए जो हमारा डिले होगा वो क्या होगा, क्लॉक साइकिल्स हमारी कितना डिले होगा, एक तो 2, इसकी जो क्लॉक साइकिल्स हैं 2, जो मींस कि 2 डिले तो यहाँ पर होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंड 1 कांस्टेंट के लिए होगा, तो टोटल हमारा डिले क्या होगा, 3 होगा। तो L, 3 यहाँ पर 3 डिले है। नेक्स्ट हमारा है n इज इक्वल टू 3 क्रॉस m, तो 3 हमारा कांस्टेंट है, m एज अ इनपुट वर्क करेगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर डिले क्या होगा, 2 इसके लिए एंड 1 कांस्टेंट के लिए, तो m, 3 आया यहाँ पर। ठीक है, सो इसको हमने एक एनवेलप में डाला। नेक्स्ट है आपका O, P एंड Q, तो O है आपका n इंटू आई, तो ये n एज अ इनपुट कनेक्ट होगा इसमें, और I हम कहाँ से लेंगे, ऊपर से कनेक्ट करेंगे, ये हमारा I था। ठीक है, अब इसमें हमारा डिले कितना होगा, सॉरी, ठीक है, तो 2 डिले तो ये आपका n का होगा और यहाँ से आपका डिले आएगा, मतलब 2 इसके लिए होगा और 1 इसके लिए होगा, तो टोटल 3 का डिले होगा। देन हमारा 16 है P इज इक्वल टू O, H, तो O एज अ इनपुट इससे कनेक्ट होगा और H हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। डिले कितना होगा, 3, 2 इसके लिए एंड 1 इसके लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, P के बाद Q इज इक्वल टू P इंटू Q, तो P एज अ इनपुट कनेक्ट होगा और Q यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो किसमें आएगा, Q में। ठीक है, तो यहाँ पर डिले क्या होगा आपका 2 एंड इसके लिए 1 इसके लिए 3 एंड यहाँ पर Q0 0। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने अगर इसको कोर्स फाइन ग्रेन में बनाया है, ठीक है, तो हमारे पास 17 नोड्स हैं एंड इनके बीच में हमारे बहुत सारा डिले भी हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम सेम प्रोग्राम को अगर हम कोर्स ग्रेन में बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर नेमिंग की है ABCDE, तो यहाँ पर हम नोड बनाएंगे ABCDE। ठीक है, अब A, 8, तो A के अंदर जो हमारे एनवेलप हमने बनाया है A के अंदर, उसमें कितनी क्लॉक साइकिल्स हमारी लग रही है वो यहाँ पर आएंगे। तो 6 की इंस्ट्रक्शन की 6 एंड 2 मीन 6 + 2 8, तो A, 8। B के लिए कितनी लग रही है, 2 + 2 4, C के लिए 4, D के लिए 2 4 6 एंड E के लिए भी 6, तो यहाँ पर A, 8, B, 4, C, 4, D, 6, E, 6 ये हमने किया, राइट। अब इसमें हमें एजेस कनेक्ट करना है, तो एजेस हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस A नोड से हमारी कौन कौन सी एजेस कनेक्ट हो रही हैं, किससे, B, C, D और E से कनेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, A को B से कनेक्ट किया, A को C से और A को D से, ये A, B, C एंड ये हमारा D से भी कनेक्ट हो रहा था, राइट, K के थ्रू। तो हमने को ये कनेक्ट एजेस की, तो A के थ्रू B से किससे कनेक्ट हो रहा था, ABCD इनसे कनेक्ट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर किया A, 6, B, 6, C, 6, D, 6, राइट। देन हमारा C से कैसे कनेक्ट हो रहा था, D, E और F के थ्रू, तो यहाँ पर D, 6, E, 6, F, 6, जो हमने डिपेंडेंस ग्राफ बनाया था ये हमारा वैसे ही ग्राफ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा A से D कैसे कनेक्ट हो रहा था, A से D K के थ्रू कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो K4 और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, 4, 3, जो 3 कांस्टेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड जो हमारा K के थ्रू कनेक्ट हो रहा था K4 वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए K4 इससे कनेक्ट हो रहा था। सिमिलरली C से D कैसे कनेक्ट हो रहा था, ये C से D कैसे कनेक्ट हो रहा था, J4 के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, ये J4 है, तो यहाँ पर J4 आया एंड ये D से कनेक्ट हुआ। एंड C से E कैसे कनेक्ट हो रहा है, इस C से E हमारा कनेक्ट हो रहा है G, H एंड I से, तो यहाँ पर G, H एंड ये हमने क्या किया, C से E I के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो C से E I 4 के थ्रू कनेक्ट होगा एंड B से E G एंड H से कनेक्ट हो रहा है, तो H एंड G ये, तो इन सबको हमने कनेक्ट किया। तो आप देखेंगे कोर्स ग्रेन प्रोग्राफ जो हमारा बना, प्रोग्राम ग्राफ, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो रहे हैं, ओनली 5 नंबर ऑफ नोड्स हमारे यूज हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ एजेस हमारी कितनी यूज हो रही हैं, 3, 6, 7, 8 नंबर ऑफ एजेस हमारी यूज हो रही हैं। ठीक है, बट अगर हम फाइन ग्रेन का यूज करते हैं
तो फाइन ग्रेन से हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो रहे हैं, 17 नंबर ऑफ नोड्स हमारे बन रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस भी हमारी ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ डिलेज जो होगा इसमें वो भी इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा या लार्जर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको हमने क्या किया है, बिफोर पैकिंग कैसा होगा हमारा फाइन ग्रेन का जो प्रोग्राम ग्राफ वो हमने बताया, और कोर्स ग्रेन का प्रोग्राम ग्राफ हमने यहाँ पे जो बनाया है ये आफ्टर पैकिंग, मीन्स हमने पहले बिफोर पैकिंग क्या हो गया कि हमने उनको पार्टीशन किया, देन हमने उनको ग्राफ बनाया। ठीक है, कि कैसे हमें इनको पैक करना है। ठीक है, तो हमने पैक कैसे किया, कंबाइन करके हमने उनको पैक किया कि ये सारे जो नोड्स हैं हमारे एक के अंदर जो नोड्स हैं हमने उनको कंबाइन कर कर एक नोड का नेम दिया ए, एंड उसमें जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उनको कंबाइन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंबाइन करके कोर्स ग्रीन ग्राफ बनाया। ये देखो हो गया। ठीक है, तो देखिए node A, 8 obtained by combining the node 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 and 11 2, and the size grain size is 8। ठीक है, तो ग्रेन साइज कैसे 8 आया वो हमने बताया ऐसे आया है। ठीक है, कि सबको हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, सो बेसिकली दिस ग्रेन पैकिंग आइडिया क्या होता है, बेसिकली टू अप्लाई फाइन ग्रेन फर्स्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। हम इन सब फर्स्ट जो हमारा ग्रेन पैकिंग का जो हमारा मेन जो आइडिया है वो क्या है कि हमें हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को अचीव करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीपल जो पैकेजेस हमने बनाए हैं उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसमें हम कोर्स ग्रेन में, फाइन ग्रेन में हमारे मल्टीपल जो हमारे ग्रेन्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं उनमें नंबर ऑफ डिलेज ज्यादा होता है, तो हम उन डिलेज को एलिमिनेट करने के लिए, जो हमारा डिले है उसे रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उन मल्टीपल ग्रेन पैकेजेस को हम क्या करते हैं, या ग्रेन को हम कंबाइन करते हैं कोर्स ग्रेन से। ठीक है, तो अगर हम ये शेड्यूलिंग है, देखिए आप शेड्यूलिंग आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होगी, डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग होती है। तो हमने जो ग्रेन हम भी पैक किए हैं अब हम उनको शेड्यूल कैसे करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल करने के लिए देखिए हमने आपने 17 नोट्स जो आपने बनाए थे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोट्स अगर आप इस शेड्यूलिंग के अंदर देखेंगे तो ये 17 नोट्स हैं। ठीक है, एंड जो आपकी स्लांटिंग लाइन, ये लाइनिंग वाला जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, आपका डिले शो कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं पैरेलली एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो जो भी आपके वेरिएबल्स थे 1 to 17 वो हम यहाँ पर लेंगे, एंड उनके बीच का जो डिले है वो स्लैंडिंग लाइन से शो करेंगे किसमें, फाइन ग्राफ में। एंड कोर्स ग्राफ में हम क्या करेंगे कि जो हमारे डिलेज थे या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जो हमारा अनवांटेड या अननेसेसरी डिले है वो हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा यहाँ पे। सो नंबर ऑफ जो टाइम है हमारा, टाइम यूनिट्स है वो हमारी क्या होंगी, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी 42 टाइम यूनिट्स यूज हो रही है, यहाँ पर हमारी ओनली 38 टाइम यूज होंगी। नंबर ऑफ नोट्स हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे, डिले हमारा रिड्यूस हो जाएगा कोर्स ग्रेन में। देखिए ये वाला शेड्यूलिंग ग्राफ देखिए, ये वाला शेड्यूलिंग ग्राफ देखिए आप। ठीक है, तो इस शेड्यूलिंग में आपको देखिए बहुत सारे डिले दिख रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी जो डिलेज हैं वो लेस हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया है किसको, जो हमारे स्मॉल स्मॉल पैकेजेस थे या फिर जो आप उसके सेगमेंट्स थे या ग्रीन थे, हमने उनको यहाँ पे